हेलो एंड वेलकम टू द ESS ग्लोबल पॉडकास्ट। इन पॉडकास्ट में हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। मैं आपका होस्ट कॉनिका सूद आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया है फॉर द कंट्री कनाडा। पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि कनाडा एज अ कंट्री उसमें क्या चल रहा है, एंड यूनिवर्सिटी रेप से हमने बात करी है जिन्होंने हमें एक इंसाइट शेयर किया कि कनाडा में पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज भी हम एक यंग यूनिवर्सिटी को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर कनाडा, जिनका हम पर्सपेक्टिव जानेंगे रिगार्डिंग जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं कनाडा में, वो हमें कितना अफेक्ट करते हैं या हमारे लिए बेनिफिट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस अर्जिता शर्मा फ्रॉम IBU यूनिवर्सिटी कनाडा। सो अर्जिता, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you so much, first of all, Kanika, for having me today. And I feel wonderful, especially during these sessions when I get a chance to address queries of students and, give them clarity upon Canada and university that I represent. Right. बिकॉज ये पॉडकास्ट हमने इसी के लिए ही बनाए हैं, सो दैट वी कैन गिव द क्लैरिटी टू द स्टूडेंट्स कि उनको फ्यूचर किस तरह से अपना अलाइन करना है। Absolutely. सो टू बिगिन विद आई वुड लाइक यू टू कि मेरे को एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए, व्हाट इज IBU? IBU, as the name suggests, it's an international business university. Okay. What is the location of IBU? It's downtown Toronto. So it's basically in the hub of business. We have fintechs, banks, corporates around us. So जो location है वो बहुत अच्छी है business पढ़ने के लिए. Okay. IBU के पास bachelor programs हैं, master programs हैं, we have degree programs. Alright. And I think we will go into more details and specializations and everything in following questions as well. Definitely. As I mentioned in the intro as well, कि this is a very young university, right? Yes. So when was this university established? So IBU's foundation began back in 2015. Alright. But we introduced our first MBA program in 2020, Alright. and we started it with one of the specialization, which is in technology, innovation, entrepreneurship, and now we have 5. So we have total 9 programs, different specializations, including bachelor's and master's both. Great. And since you talked about the location of the university, it's Toronto, right? Yes. So अभी जो हम सुनते हैं कि टोरंटो जो है वहाँ तो मत जाओ, ऐसा कुछ है? मुझे लगता है यू एंड आई नो कि बहुत चेंजेस आए हैं पास्ट एक साल में कनाडा को लेकर के, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बंद होना हो, सैटेलाइट कैंपसेस जिन्हें हम कहते थे, या फिर वो बच्चों की जो एनी स्टूडेंट हु वांटेड टू गो टू कनाडा उनका फोकस स्टडीज की तरफ ज्यादा मूव होना हो, चाहे वो प्रोग्राम्स फोकस होना हो, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. सो इट्स नॉट दैट यू डू नॉट हैव jobs there or you do not have accommodations there. अभी जो inflow है students का, it is also very limited. Canada is not taking bulk. Right. They are taking quality students. They focus on good students who wants to complete their studies there. So what better location than downtown Toronto to study business? अगर मैं कोई trade skill की बात करूँ तो शायद maybe on a regional location you'll get advantage. Right. But अगर आप business पढ़ रहे हो, you have to be surrounded by it. The best part of MBA and BCom is networking and socializing and making better connections. And where do you think you'll get better connections than downtown Toronto? बिल्कुल सही कहा आपने. And what changes we are seeing in Canada is towards कि हम बच्चों को एक skill attain करवाएं. Yes. Rather than क्योंकि पहले तो भेड़चाल में सब आ गए एंड कोई स्टडी के ऊपर कोई फोकस नहीं था किसी का, irrespective of the streams they have been studying and going to, right? तो अभी जो हमने चेंजेस देखे हैं, इन प्रीवियस पॉडकास्ट ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि जो चेंजेस आ रहे हैं इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली. 100%. आप देखो स्टूडेंट भी, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें 2024 में no student wanted to take a degree program. They all wanted to go for a 2-year diploma program or a 1-year PG certificate, which we always try to encourage them to go to a degree program, but उन्हें बेस्ट ऑप्शन लग रहा था कि 2 साल की पढ़ाई करनी है, they'll get the similar PGWP. But अभी आप मार्केट में शिफ्ट देखोगे, you'll see students shifting towards the degree programs more than diploma, because understanding develop हो रही है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पर सिक्योर है, डिग्री प्रोग्राम्स में सिक्योर है. बिल्कुल. देखिए मास्टर्स और जो डिप्लोमास का डिफरेंस है जो मैं समझती हूँ वो ये है कि अब जैसे AI का दौर चला है, राइट, ग्राफिक्स का दौर चला है, तो हम एक 1500 का कोर्स करके भी अपने लायक एक ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं. बट देन जिस बच्चे ने उसमें एक मास्टर्स डिग्री करी है या बैचलर्स डिग्री करी है, उसको वो एस्पेक्ट्स के बारे में पता होगा जो शायद हमने सोचे भी नहीं, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ नॉलेज इज दिस, उनका लेवल ऑफ नॉलेज इज ह्यूज. एंड व्हेन यू आर गोइंग इंटरनेशनली, so internationally जब आप जा रहे हो, you have to keep your mind open. You have to be open for all the possibilities. And
it all starts with the correct program. Exactly. You do not have to go short run, you have to go long run. And if you have the correct program, you complete it rightfully, you get your PGWP, you get a good settlement option if you're looking for it. नहीं वही बात है, जैसे आपने अभी बोला कि हम तो पहले भी बोल रहे थे कि मास्टर्स के लिए जाओ, 100% बैचलर्स के लिए जाओ, लेकिन बच्चे ही मानने को तैयार नहीं थे because they were looking for the shortcut. Yes. But now it is very clear to the student from the government side कि भैया आपको आना है तो यू चूज अ गुड प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया ओनली, क्योंकि वहां जाकर भी चेंज करेंगे तब भी दिक्कत है. तो आप यहीं से अपनी रिसर्च कंप्लीट करके जाएं एंड देन यू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम. दिस गेट्स मी टू द क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम डज IBU ऑफर्स? All right, the brief that I gave, BCom and MBA programs, I'll go into details. Now what makes us stand out from other universities and schools in Canada is our specialization category. We have different specializations, industry focused and job focused programs. अगर बैचलर्स की बात करूँ, जो स्टूडेंट 12th पास कर रहे हैं अभी 25 में की है, 24 में की है, 4 years तक का गैप भी है आपके, we accept those students. They have chances जहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट which is a generic program. Now comes to the डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग, माय पर्सनल फेवरेट. एंड देन मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बिजनेस और टेक्नोलॉजी का मिक्स विच इज द बेस्ट. व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर. सो इसमें आप प्रोग्राम्स पढ़ते हो. डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करूँ, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है बिकॉज इट इज एन अपग्रेड. आप अपने लिए एक डिजिटल स्किल डेवलप करते हो. See, digitalization of business is not future anymore, it's present. Everyone, smallest businesses, even in downtown Toronto, any nationality, any country, I'll tell you, वहाँ पर सभी businesses को चाहिए कि कोई हमारा digital platform manage करे, and they want efficient people who have learned to do it. सो जो सर्टिफिकेट है उससे बेटर किसी और को कोई क्यों हायर करेगा. सो आप पार्ट टाइम जॉब भी मिल पाती है आपको, फुल टाइम जॉब भी मिल पाती है. यू स्टडी ई-कॉमर्स, यू स्टडी ब्रांड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एनालिटिक्स, एंड यू स्टडी सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो इस तरह के कोर्सेज जब आप पढ़ रहे हो, यू डेवलपिंग अ स्किल फॉर योर सेल्फ. आप एज अ फ्रीलांसर विद वन ऑफ द एड एजेंसीज में भी, विद वन पर्टिकुलर बिजनेस, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है आपके लिए, विच इज अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. अगेन गोइंग फॉर IT मैनेजमेंट, आपको स्टूडेंट आप B2C करते हैं, यू हैव मोर स्टूडेंट इंटरेक्शन देन मी, एंड आपको पता होगा जो स्टूडेंट थोड़ा भी अवेयर है, उन्होंने नॉन मेडिकल पढ़ी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी है, दे थिंक BCom इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, बट नॉट एट IBU. IBU हैज स्पेशलाइजेशंस लाइक IT मैनेजमेंट, जहाँ स्टूडेंट को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, दे हैव टू डेवलप अ कटिंग एज स्किल फॉर देमसेल्व्स, और दे हैव टू लर्न समथिंग जो उनको उन 100 लोग की भीड़ से अलग करता है, जहाँ पर उनके जॉब के चांसेस या एक अच्छी हाई पेइंग जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट द स्पेशलाइजेशन फॉर बैचलर्स. तो इसको अर्जिता हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बच्चा IT जाता है, BCA करी, उसके बाद MBA करता है, तो उसका ब्लेंड ही उसको यहाँ BCom में मिल गया, जहाँ पे उसने IT भी पढ़ लिया प्लस उसने मैनेजमेंट के कोर्सेज भी 100%. एंड दिस इज अ 4-year प्रोग्राम. अगेन 4-year प्रोग्राम है, बट वी गिव यू ऑप्शन एज अ यूनिवर्सिटी कि आप उसे 2.8 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो. सो अगेन स्टूडेंट जो 4 साल पढ़ना चाहते हैं, इट्स एन ऑप्शन फॉर देम. जो स्टूडेंट 3 years, लेस देन 3 years की डिग्री करना चाहते हैं, इट्स ऑप्शन फॉर them as well. और आफ्टर डिग्री बेनिफिट सेम रहते हैं. बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों को कि 2.8 years में वो कंप्लीट कर ले 4 years की डिग्री? सो इसके लिए आपको अपना सेमेस्टर ब्रेक स्किप करना होता है. तो आपके जो सेमेस्टर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव लगते हैं. लेट्स से हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर है, टोटल 8 सेमेस्टर्स का कोर्स है. 32 कॉन्जिक्यूटिव मंथ अगर आप लगाते हैं अपना कोर्स, तो आपके 2.8 years, लेस देन 3 years में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है. नाउ यू विल से कि अर्जिता दिस विल बी ओवरबर्डन फॉर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें उन्हें मैनेज करनी पड़ती है. We make sure that student is not overburdened because the classes you have to commit for in IBU is only for 2 days a week. Okay. So student will have to dedicate these 2 days to the university, and वो अपना schedule अपने My IBU portal पे अपने courses के according कर सकते हैं, and then rest 5 days they are free, एंड इसी तरह से वो अपनी 2.8 years में डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो मुझे ये लगा था कि हमें अर्जिता को प्लीज करना पड़ेगा कि जी मेरी डिग्री का ड्यूरेशन कम कर दो, बट ऐसा नहीं है. अगर आप उसको तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है, वो चीज़ों के साथ साथ भी मैनेज हो जाएगा.
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें स्टडीज करने के लिए सारा कुछ फोकस ही स्टडी पे करना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ काम ही करना है। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप 4 ईयर की डिग्री ही करो। क्यों? सी कनिका, आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, आप +2 करके गए हो, यू आर यंग, रियली यंग। अगर आपको एक सेमेस्टर के बाद ब्रेक मिल रहा है, टेक दैट ब्रेक। You can also during that break you can also work for 40 hours. जो आप अपनी स्टडीज के दौरान 24 hours काम करते हो, ब्रेक में आप 40 hours काम करते हो. You can learn a new hobby, a skill, you can travel the country or earn for yourself. You can pick one of the option. आपको 4 years की डिग्री है plus 3 years का work permit है. You have good 7 years in downtown Toronto. You are making a conscious choice. You are picking a location for yourself. You should give yourself these years so you do not have that panic in your head after 3 or 4 years that where do I stand in my PR chance, where do I stand in my long term stability. So आपके पास अगर 7 साल है सेफ तो उसे रखो, but if you want an option of shortcut, you want to go for a fast track, we have that for you. So हमने बात करी BCom के बारे में. Now MBA. MBA is the मतलब हॉट चॉइस होती थी बच्चों के लिए टू गो फॉर दैट, है ना. बट वो पीछे थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई बिकॉज जो जनरल कोर्सेज है वो बंद होने शुरू हो गए कि बच्चे वहाँ पे ना जाए बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन. इट वाज राइटली डन. Absolutely. एंड जब मैं आपके कोर्सेज देख रही थी एंड अभी आपने बताया भी, दोज हैव वेरी यूनिक स्पेशलाइजेशंस जो कि टाइम की रिक्वायरमेंट है एंड फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है. Yes, we take pride in that actually. And MBA, IBU has always been very, very popular for its master programs. And so many students are studying there. We have 3,000 plus students there and 60 plus nationalities also. So many students have gone to MBA programs for its specialization only. Again, अगर मैं specialization की बात करूँ, so we have a general MBA program. But do I recommend that anybody who can and is eligible should go for a specialization. So IBU has global business management, IBU has finance and management analytics. MBA में this is my personal favorite, जैसे BBA में एक है. उसके अलावा यहाँ पर we have information technology management. कोई भी जो technical background से, कितने student हैं इंडिया में and Canada में भी, they do a BTech degree, technical degree, they do BCA or they do BSc computer science and now they want to go for a management or a business program. So this information technology management is specially made, tailor made for those students. इसके अलावा students हैं जो अगर entrepreneurship background से भी आते हैं, they have done their own business and now they want to move to Canada and study there. So technology, innovation and entrepreneurship specialization which used to be our first specialization, and then everything else, every other specialization followed through. We got approvals for everything. So yes, these are the specialization. All programs would be of a length of 16 months. 16 months. So it is not 24 months, it's 16 months. 16 months, yes. 4 semesters. 4 semesters. So it makes the student eligible for the postgraduate work permit, right? 100%. आपको चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री चाहे मास्टर, दोनों में 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है once you have completed your all courses and your degree at IBU. I would like to add one thing. अभी स्टूडेंट्स को बहुत confusion है. So I'll give you a link, maybe I'll give you a link of IRCC. See, if I talk to the students, you should not trust everything and anything somebody is talking, right? You should always do your due diligence. You should do your research. So I'll give you a link if possible for you. Add in this video. It's IRCC link जिसपे IBU के सभी specializations mentioned है, BCom and MCom, under the category that if you complete these specialization from IBU, you are eligible to get a 3-year work permit. So IRCC से ज़्यादा legitimate वेबसाइट कौन सी होगी जब आपको क्रॉस चेक करना है कुछ. So that will help students. So अर्जिता, now I would like to talk about the policy changes जो कनाडा में हम पिछले 6-8 महीने से देख रहे हैं. जो एक टॉप डेस्टिनेशन होता था स्टूडेंट्स के लिए, वो धीरे धीरे थोड़ा सा बिलो रैंक पे आई जा रहा है. बट आई एम श्योर कि कनाडा के पास कोई ना कोई बाउंस बैक प्लान होगा ही कि मुझे वापस उस पोजीशन पे भी तो पहुंचना है. 100%. So yes, तो जो नई पॉलिसीज अभी इन प्लेस आ रही है, वी हैव सीन द इंक्रीज इन द GIC. Right? We have seen the introduction of CIP codes for the courses, right? For the masters and every courses, right? And then there are few other changes also. तो आप उनको किस तरह से describe करते हैं? See, instead of saying कि जो Canada है, एक तो Canada has always been welcoming international students really warmly. आपको अभी भी I'm very happy I work for Canadian University. क्यों? क्योंकि कनाडा अभी भी स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जितनी इजीली ऑफर करता है उतना कोई भी और डेस्टिनेशन
आई डोंट थिंक यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, यू नो, नहीं कर सकता है. सो एक तो ये प्रायोरिटी है. अभी भी स्टूडेंट्स हैं जो इसलिए जा रहे हैं कनाडा, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लो हो गया है, कनाडा इज ट्राइंग टू सेट द बार हायर. सो नाउ दे डू नॉट वांट टू गिव शॉर्टकट्स, दे वांट टू गिव industry focused programs. They do not want to give only this impression that come for work. If you are coming on a study permit, you will have to regard that. Right. So a lot of changes you'll see around study permit. Yes, a lot of changes have been made. Now the changes started back in 2024 when government said that there would not be spouse eligibility on bachelor programs and undergrad programs, but they gave certain specialization and streams, around 5 to 6 streams in bachelors, जहाँ पर अभी भी eligibility थी. If you want to travel together, you can. उसके अलावा then in 2025 January we saw that again government said even if you are going for masters, your master should be of 16 months to have the eligibility for a spouse program. So that happened. Yes. And then CIP codes that we talk about, those changed. That is a big change, although it's on hold and the final decision will be made in early 2026. Okay. जो changes हैं वो हैं around business programs और general programs जो students को job के chances anyways वहाँ नहीं दे रहे थे, जिनकी long run में लेबर शॉर्टेज होने ही नहीं वाली है जहाँ पर. सो इसका मतलब वो स्टूडेंट जो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक वो तैयार होंगे काम करने के लिए, उस सेक्टर में शायद काम ही नहीं हो करने के लिए. सो इट्स अगेन अ स्मार्ट डिसीजन. बट इफ यू सी द फील्ड ऑफ स्टडीज, जो अगर वो करेक्शन हो जाता है उसके बाद 920 फील्ड ऑफ स्टडीज जो बचते हैं, उसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, उसके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए हैं. ऑप्शंस बिजनेस को लेके या फिर ऑप्शंस जो स्टेम नहीं है, मेडिकल नहीं है, उसको लेके बहुत कम है. सो आई हाईली रेकमेंड स्टूडेंट स्टार्ट पुटिंग द फोकस, व्हिच आई एम ऑलरेडी सीइंग, बट अगेन देयर इज अ big gap to bridge. बिल्कुल, it takes time actually. Absolutely. So students should go for degrees, like I'm telling you, IBU के पास, and there are multiple options for students. So student को अब डिग्री प्रोग्राम पे फोकस करना होगा, स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स. एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ स्टैम में या फिर सिर्फ टेक्निकल प्रोग्राम ना पढ़ के वो बिजनेस और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड पढ़ सकता है. सो दैट्स आई थिंक अ गुड पार्ट. और चेंजेस जो हो रहे हैं वो सारे यू एज अ कंसल्टेंट, मी एज अ यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट एज यू नो इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन सभी के लिए फेवरेबल हो रहे हैं. इफ यू फॉलो द रूल्स, योर future is very very secure in Canada. So yes, these things are happening, but it's not कि जो अभी मैंने सुना, एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगी, मैंने सुना वीजा नहीं आ रहे हैं कनाडा, 12th के बाद बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है. हर्ड दिस इन अ स्टूडेंट सेमिनार कि कनाडा में तो आप मास्टर्स में ही जा सकते हो. ये कंफ्यूजन सेट कर दिया ना एक सबने. तो वो जो कंफ्यूजन है वो आई थिंक इस आंसर में दूर होता है कि नो, यू कैन गो, यू जस्ट हैव टू पिक द राइट प्रोग्राम. गो फॉर बैचलर प्रोग्राम्स. जो रिफ्यूजल्स हमने पास्ट में देखे, आई एम नॉट सेइंग एंटायरली डिप्लोमास पे थे, बट मेजॉरिटी डिप्लोमास पे थे. यू विल सी अंडरग्रेड डिप्लोमास या पीजी सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमास, उनमें काफ़ी रिफ्यूजल्स हमें देखे. मे बी देयर वाज अ पोर्शन जहाँ डिग्री प्रोग्राम्स पे भी आए होंगे, बट नॉट मैसिवली. So again, if you are going for a degree program, if you are showing Canada that you are there for a long run commitment, they are more than happy to welcome you. नहीं, I liked what you said कि कनाडा लो रैंक पे नहीं आ रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज कर रहा है, that which was required, you know, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि कोई भी आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, वो इररिस्पेक्टिव उसकी फील्ड क्या है, वो कोई भी कोर्स लेके जा रहा था. बिजनेस डिप्लोमा, बेस एसोसिएट प्रोग्राम्स, एंड सो जो फ्यूचर नहीं दे रहे हैं वो प्रोग्राम अब स्टूडेंट पिक नहीं करेंगे आई थिंक. एंड शायद अभी वो स्टूडेंट्स वहीं पर ही है, जो कि होंगे ही, बिकॉज उनके अभी डिप्लोमास खत्म हुए होंगे या डिग्रीज खत्म हुई होगी, जिनको स्ट्रगल हो रहा है. यस. जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा हो जाता है कि नहीं, वहाँ जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है. Whereas बच्चा वो दूसरा एस्पेक्ट देखना भूल जाता है या अनदेखा कर देता है कि क्यों नहीं है. यस. हम हमेशा बिल्कुल हम हमेशा कंपेयर ऐसे करते हैं, जैसे मैं क्लास में 2 बच्चे हैं, मेरा प्रोफाइल भी वैसा ही था जैसा उसका प्रोफाइल था, बट उसका वीजा आ गया, मेरा नहीं आया.
राइट। बट उस प्रोफाइल के दौरान आपके नंबर्स में कितना डिफरेंस होता है, आपके फैमिली के इनकम में कितना डिफरेंस होता है, आपके शोइंग फंड शोइंग कैपेसिटी में कितना डिफरेंस होता है, वो बच्चा भूल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक, हम एक क्लास में बैठ के गए थे, उसका वीज़ा आ गया, मेरा वीज़ा नहीं आया, वो वहीं पर ही स्टक हो जाता है, वहीं पर रिवॉल्व करता रहता है। वेरएज़ अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू स्विच, कि हमने सिर्फ वो नहीं देखना है कि इसका वीज़ा आया या इसका नहीं आया, हमें उस पे फोकस करना है कि मैं अपने वीज़ा प्रोस्पेक्ट कैसे बढ़ाऊं। Narratives are changing for Canada. Yes, it is. एक मेजर जो इफेक्ट डालता है इन कनाडा इज द फाइनेंशियल्स, है ना, बिकॉज वो बाकी हर एक कंट्री से ज़्यादा है जो अपफ्रंट बच्चे को पे करने हैं। उसमें आपका 1 ईयर का ट्यूशन फीस इंक्लूड हो जाता है, इंक्रीज्ड GIC इंक्लूड हो जाएगा फ्रॉम 1 सितंबर, एंड बच्चों के पास अभी भी टाइम है टू कैटर इट कि अगर वो 1 सितंबर से पहले फाइल लगा दे, बट देन बी प्रैक्टिकल इस चीज़ में कि हाँ जी कितना का टाइम चाहिए हमें, क्योंकि अब वीज़ा का टाइम भी बढ़ गया 100%। तो वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको IBU कैसे कवर करता है? So IBU, see, if I talk about visa filing, we guide you. We have a immigration support team who guide you. If you ask for guidance, कि किस तरह से आपको files अपनी एम्बेसी में लॉन्च करनी चाहिए, क्या फाइनेंसेस होने चाहिए, किस तरह से आपको SOP लिखनी चाहिए, वी हेल्प दैम। बट मुझे लगता है इसमें मेजॉरिटी बहुत बड़ा रोल एज अ कंसल्टेंट आपका भी होता है। सो फाइनेंसेस में हेल्प कैसे कर रहे हैं हम, टू कीप the fees very affordable. Now let's talk about fees also, which is a big part of student finances, जो उसको पे करना है upfront। 1 साल की फीस आपको पे करनी पड़ेगी if you want to increase your chance of visa and IBU. If I talk about, we do not even give that option. We encourage students कि आप 1 ही साल की फीस पे करो and then आप GIC पे करो 1 साल का, which is currently 20,600 around this amount, and from 1st September it is going to be around 23, let's be a round of amount is $23,000. So ये दोनों तो आपको 100% पे ही करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बताना कि सेकेंड ईयर की फीस पे करने की कैपेसिटी रखते हैं हाँ स्टूडेंट खुद, उनके अगर या फिर उनके नेम में FDs हैं या फंड्स हैं या फिर उसके पेरेंट्स की रेगुलर इनकम है, दे कैन पे फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ देयर एकेडमिक्स। स्टूडेंट कैन स्टिल मैनेज देयर लिविंग एक्सपेंस, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, देन दे अर्न फॉर 24 आवर्स एंड देन इन ब्रेक्स दे अर्न फॉर 40 आवर्स एंड दे कैन मैनेज देयर लिविंग एक्सपेंस, बट देयर फीस you have to, I suggest you show that. So I know it's high, but if you're going for a right program like IBU का MBA जो फीस है फर्स्ट ईयर की 18,500 आती है। इफ यू कंपेयर विद अदर MBA प्रोग्राम वहाँ बहुत हायर बार सेट होता है। सो 18,500 इज वेरी अफोर्डेबल फीस फॉर MBA। फॉर बैचलर्स it comes somewhere around 16,500. So again वो 10 लाख के अंडर आ जाता है, जो MBA है वो 12 लाख के अंडर आ जाता है इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ। सो स्टूडेंट को GIC और फीस मिला के लगभग 24-25 लाख के अंदर ये दोनों उनके रिक्वायरमेंट्स जो है मेजर वो पूरी हो जाती है। फीस जो है आपकी वाकई बहुत नॉमिनल है, बिकॉज वी हैव सीन कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस स्टार्ट ही कई बार 25,000 से होती है, राइट, गोज अप टू 35,000। बट देन येस ऑफ कोर्स, एंड वो बच्चे के ऊपर जब बच्चा 1 ईयर का फीस पे कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन अपने आप ही कम हो रहा है ना। वहाँ पर जाके हाँ वहाँ जाने के स्टूडेंट नीड्स 1 ईयर टू हैव द स्टेबिलिटी टू अर्न। स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग फ्रॉम द सेकेंड मंथ दैट वी डोंट हैव जॉब। गुड दैट यू डोंट हैव जॉब, you should not look for job in the first place. Get settled in the university, get settled in your accommodation, learn the culture. Otherwise students cultural shock में चले जाते हैं। जो हम सुनते हैं स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं और students are facing so many problems there, they are isolating themselves. It's happening because they are rushing into jobs. Right. Give yourself 3 months, good 3 months. Try to make yourself presentable, groom yourself, make a resume, make connections, and then apply for jobs. And I'm sure within another month you'll find a good job for yourself. So yeah, this is a very good advice for the student कि उनको वहाँ जाके करना क्या है। Yes. So yes, अब going back to the thing कि अगर मुझे IBU में admission लेना है तो what should I do first? All right, it's a simple process. Canada have been simplest forever. So IBU has no application fees. It's again added advantage for the students. जो student apply करते हैं, first of all you can visit ESS Global. They have multiple offices in different locations and they are very well equipped with all the information for IBU. So
once you as a partner you apply for a student at IBU, you apply with their documents and we give you a offer letter, a pre-offer letter. Okay. On the basis of documents, if the student is eligible, you get a pre-offer letter. On the pre-offer letter you pay 1 year's fees for BCom 16,500, MBA 18,500. Yes. If you pay that fees within another 2 weeks, we try to keep it as less as possible, but yes, I'll give you a reasonable TAT. It's around 2 weeks, less than that sometimes. Okay. You get your final letter of acceptance, Okay. your PAL letter, which is provincial attestation letter, Yes. and your CR, which is confirmation receipt. Okay. These 3 documents you need to go for your visa application. Right. So जैसे ही आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आप वीज़ा एप्लीकेशन लगा सकते हैं. एंड देन once you have your visa, you update IBU that I have secured visa, this is my PPR, and my the stamping process of my passport is going on. And once you receive it, you update us about your travel plans. Why I'm telling you, it's important because स्टूडेंट जब एक फॉरेन लैंड जा रहे हैं, दे आर वेरी इनसिक्योर. नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हैव कनेक्शंस देयर, मैनी हैव इन नॉर्थ इंडिया बट नॉट ऑल ऑफ देम. सो वी सेट अप अ कैनोपी देयर, वी हैव अ सेटअप देयर, जहाँ एयरपोर्ट पे पियर्सन एयरपोर्ट जो है डाउन टोरंटो में, वहाँ पर स्टूडेंट को हम फैसिलिटेट करते हैं दैट दे कम टू द डेस्क ऑफ IBU, दे आर वेलकम्ड, दे आर टोल्ड दैट शो अस your letter of acceptance, and then their travel to the university is arranged. Okay, on the airport you on have the a Pearson canopy. Airport, yes. Right. Now it's not a year-long activity that we do. We do it during our intakes. Intakes only. And intakes भी आपको बताना इसलिए ज़रूरी है because according to that we keep our dates कि हम ये जो facilitate कर रहे हैं ये activity ये कितना time तक. So let's say we started from 20th of August for September intake, which is coming approaching. Right. 20th of August till 5th, let's say 5th or 10th of September, we will keep it. And then before or after, if you are traveling, then you will have to manage yourself. Okay. But we recommend आप उस दौरान travel करो. Students receives a mail on this in our pre-departure and open house sessions. We mention especially the links where to register and the information where you should put all the information. So I think this is very good कि आप foreign land touch कर रहे हो और you don't have to be scared कि what should I do, where should I go. You have a person to go to. Right, you don't have to wait for somebody to come and Yes, pick and you pick up. Yeah, exactly. Okay, now I just want to know about the entry requirement for the particular courses and the university. Alright, so IBU gives fair chance to all the students. If I talk about bachelor programs, you are coming from arts, commerce, non-medical background, you have a 55% overall. In your +2, you are good to go academically. If I talk about English language, which is common for both, I'll mention at once. MBA और bachelor's दोनों का same है. IELTS, we need 6.5 overall, no less than 6. For bachelor's as well? Yes. Okay. For we have recently revised our requirements. And then for PTE, if you have done Pearson test of English, you have to go for 60 each module. 60 each. So overall is 60 or more than that. That works for us, but each module should have 60. And then I'll not mention all the requirements to go, to make it lengthy, but we accept all competitive exams as well. Duolingo, and we accept CELPEP and TOEFL and everything. So do you give the admission on the basis of MOI, medium of instruction? Oh no, we don't do that. So I think Canada very less university is giving that option. And for visa filing, you eventually have to go for IELTS PTE. So we do not do this. We try to focus on the students who are really serious about taking admission and who value the admission that they are getting at IBU. Right. So yes, you have to go for your complete profile, academic and English language. We do offer admission on one condition. अगर आपका IELTS या PT नहीं हुआ है complete, but आपने test book किया है. ठीक है. Let's say today you have a test which has expired. आपको पता है आप क्रैक कर लोगे, आपकी प्रेपरेशन है आप क्रैक कर लोगे, आपने नेक्स्ट मंथ का टेस्ट दिया है, बट यू वांट टू सेव दिस टाइम ऑफ अ वीक और 2 कि आपका ऑफर लेटर तब तक आपके हाथ में हो, आपकी जो डेट ऑफ बुकिंग है वो उसके साथ में आप प्रूफ ऑफ बुकिंग के साथ में आप एप्लीकेशन सबमिट करो, यू गेट एन ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर इट विल बी. Okay, and then just उसके बाद जब आपका IELTS PT का स्कोर आ जाता है, we just have to give the score card and then you pay tuition deposit on the same offer letter. On the same offer letter. Yes. So that will be the pre-offer letter which you said earlier. Yes, right? pre-offer letter. With the condition of IELTS PT. IELTS PT, that you have to make tuition deposit after providing a proof of English language. English language score.
Okay, so I'll move on to MBA requirements. Bachelor is completed. MBA में there are different aspects. International market में जब आप MBA करने जा रहे हो, आपके वर्क एक्सपीरियंस की बहुत सिग्निफिकेंस होती है. You must have heard some university do not take fresh graduates at all. We at IBU we give you fair chance. आप fresh graduate हैं. मैं 26 intakes की बात करती हूँ. We have 3 intakes, January, May and September. सो तीनों इनटेक में अगर आप एज फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करना चाहते हैं, हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट, आपने 2 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन की है, यानी 24 and 25 में आपने ग्रेजुएशन की है. वी टेक 3-year बैचलर, 4-year बैचलर, वी टेक ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग, fair chance to everybody. You have to have 65% if you have a 3-year bachelor. You have to have 60% if you have a 4-year bachelor with 1 letter of recommendation from your institute जहाँ से आपने बैचलर्स की है. But if you've completed your MBA graduation for that matter, so if you're coming with a gap of 2 years or more than that, तब आप हमारी एक requirement है, you should have minimum 2 years of work experience. Let's say कोई भी 2023 pass out है या उससे पहले आपके पास 2 साल का minimum work experience होना चाहिए to get admission in IBU. ठीक है. तब आपको एडवांटेज मिलती है 3-year बैचलर पे 55%, 4-year बैचलर 50%, and we only take admissions with a resume. You have to have a detailed resume, a good resume with all your details. अगर आप fresh graduate हैं, make sure academics के अलावा आप extra curricular, social activities, certifications that you have done. कभी कभी student इन चीज़ों को importance नहीं देते हैं. Smallest of activities, you have participated in a debate, mention, be very specific about it. कौन से year में किस topic पे आपने participate किया है, या फिर आपने कोई certification कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेशन किया है, एनीथिंग, मेंशन इट इन द रिज्यूमे. वी वांट इट टू बी डिटेल्ड. गैप कितना एक्सेप्टेबल है? 10+ years तक. वी डू नॉट हैव अ बार. क्यों? इट्स अ ब्यूटी ऑफ MBA प्रोग्राम्स. जितना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस उतना ज्यादा रेलेवेंस क्रिएट होता है आपका MBA प्रोग्राम से. बिकॉज टू जंप द कॉर्पोरेट लेडर ऑल्सो यू हैव टू हैव अ मास्टर डिग्री, स्पेशली अगर आपने वो इंटरनेशनल मार्केट से की है. देन इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो सेम रहता है, बैचलर वाला जो मैंने आपको बताया. अगेन जब आप IBU में जा रहे हैं, चाहे BCom करने या फिर MBA करने, आपका 2 days a week का स्केड्यूल फिक्स रहता है. यू हैव टू डेडिकेट दीज 2 days a week to the university. Right. So one more thing in MBA, multiple universities offer you admission on the basis of foundation programs. जहाँ आपको मास्टर डिग्री वाले उतने एडवांटेज नहीं मिल पाते हैं, you have to pay extra for foundation. IBU doesn't have that concept. If you are eligible, you get admission directly in MBA programs. Let's say आप BA बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बिजनेस नहीं पढ़ा है, we will teach you additional programs in first semester on the campus only. So this will be in addition to the MBA duration? No, same first year, first semester you will have to complete, let's say, introduction to business. It is additional course, but you have to complete it in first semester only as a part of your complete curriculum. So duration of the course will be remains the same. Now that's good. These options looks very exciting क्योंकि बच्चों के फेथ में है. Yes. उनके लिए है ये सारी चीज़ें बनाई हुई. सो थैंक यू अर्जिता इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए फॉर द किड्स, है ना, जो अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में एंड हु आर थिंकिंग कि मैंने कनाडा जाके सेटल होना है. यस. सो व्हाट विल बी योर क्लोजिंग रिमार्क फॉर द अपकमिंग एप्लीकेंट्स जो कनाडा अभी सोच रहे हैं कि मैं इसको एज ऑप्शन लूँ या नहीं लूँ, उनके लिए क्या रिमार्क्स रहेंगे आपके? अगेन सेम थिंग, कनाडा विल गिव यू ऑप्शंस दैट might not be available anywhere else. जो कनाडा है वो बहुत एक पॉजिटिव डेस्टिनेशन है टू स्टडी. अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाके परमानेंटली सेटल हो सकें या अपना एक फ्यूचर देख सकें, कनाडा वेलकम्स यू विद ओपन आर्म्स. कनाडा का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. अमेजिंग प्रोग्राम्स, वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कूल्स आर देयर इन कनाडा जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. आपको जो ऑप्शंस कनाडा में मिलेंगे वो मुश्किल ही है कहीं और मिलना. Not just because I work for Canada, but yes, I work for students actually. I work for student success. We all do. So student success कहाँ हमें ज़्यादा दिखेगा? That is a destination. Canada is one of the destinations. And इसके अलावा प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज डू योर रिसर्च. मैं कोशिश करूंगी आपको मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स दूँ हमारे स्टूडेंट के. सो ऐड दैट कैंपस टूर एंड टेस्टिमोनियल्स बिटवीन दिस वीडियो और मे बी ऐड सम लिंक्स सो स्टूडेंट को और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज स्टूडेंट से सुनने को भी मिले कि वो जो पढ़ रहे हैं क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं IBU में जाके. यस, 100%. सो एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. Anybody who wants to know more about IBU,
please visit ESS Global, and they have all the information. They will guide you from your application to your visa process and enrollment, everything. Thank you so much. थैंक यू अर्जिता, ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए फॉर द स्टूडेंट्स. तो एट द एंड मैं इसको ऐसे समराइज़ करूँगी कि जो हम हर बार हर पॉडकास्ट के एंड में बोलते ही है, आपकी रिसर्च इज़ द बेस्ट रिसर्च. क्योंकि जब हम किसी से सुनते हैं कि इसने ऐसा किया या उसने वैसा किया, तो हमारे पास आधी ही इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं होती. रिसर्च करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता. यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट, IRCC की वेबसाइट पर जाएंगे फॉर कैनेडा, या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे फॉर द कंट्री यू आर सिलेक्टिंग टू गो टू. आपकी रिसर्च ही इम्पॉर्टेंट है एंड आपके पेरेंट्स की इंटरवेंशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज एट द एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू. सो टू क्लोज माई रिमार्क्स, मैं आपको फिर से वही बोलूँगी कि आप खुद रिसर्च करें. आपका फ्यूचर है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है जो इससे चेंज होता है. सो थैंक यू. एंड आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें उस टॉपिक का नाम लिख के भेजें, एंड हम ट्राई करेंगे कि हम उस टॉपिक पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर कर सकते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.